welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is section 3 clause F of the Hindu Marriage Act 1955. Guys, so far I've covered an introductory class to the Hindu Marriage Act 1955. Then we have discussed in greater detail section 1 and 2 of the Hindu Marriage Act. Guys, even I have uploaded a single video on section 3. In that video I've told you that we'll be covering this definition part under section 3 in 3 videos. First video has already been uploaded जिसमें मैंने आपको section 3 clause A to E समझाया है. These 5 clauses. Today in this video guys we are going to discuss clause F. And in my upcoming video we'll be discussing clause G which deals with degrees of prohibited relationship. Guys, clause F and G are very important for your understanding of the Hindu Marriage Act. That's why I've got a separate video for them. So guys, please pay utmost heed to these videos at least. Guys, before we move on, if you're new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, if I begin with the Sapinda Relationship, S-A-P-I-N-D-A, Sapinda Relationship. Guys, Sapinda Relationship and degrees of prohibited relationship, which means clause F and G of the Hindu Marriage Act, section 3, basically deals with prohibitions on marriage. कहने का मतलब है गाइस कि अगर आपको जब हम समझेंगे कि स्पिंडा रिलेशनशिप क्या होता है या डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है, इसको हम इसीलिए समझते हैं क्योंकि गाइस दो लोग अगर दे आर स्पिंडास टू ईच अदर, दोज टू पीपल कैन नॉट मैरी and that marriage within the Hindu Marriage Act will not be a valid marriage. In fact, it will be a void marriage. अब समझने के लिए कि क्या दो लोग एक दूसरे के स्पिंडास हैं, उसके लिए हमें सेक्शन F को समझना होगा, सेक्शन 3 क्लॉज F को समझना होगा. सो बेसिकली व्हाइल रीडिंग द प्रोहिबिशंस ऑन मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, इट मीन्स कौन से ऐसे दो लोग हैं जो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, दे आर प्रोहिबिटेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट टू गेट मैरिड विद ईच अदर. उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि दे आर स्पिंडास टू ईच अदर. स्पिंडास का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी. एंड व्हाई आर दे प्रोहिबिटेड टू मैरी विद ईच अदर. और अगर वो शादी करते भी हैं देन इट विल नॉट बी अ वैलिड, इंस्टेड इट विल बी अ वॉइड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. Similar is the case with degrees of prohibited relationship. There are certain degrees of prohibited relationship. अगर आप उन डिग्रीज के विद इन शादी करोगे, a boy and a girl, their marriage will not be a valid marriage. So guys, आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्पिंडा रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे. इट इज़ वन ऑफ द प्रोहिबिशंस ऑन मैरिज इन हिंदू मैरिज एक्ट. सो गाइज, स्पिंडास का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट, देयर आर अलॉट मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट, बट अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट, स्पिंडास का मतलब होता है वो दो लोग जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिंस दे आर द पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी. It means those two people are related to each other by the same bloodline. Same bloodline का मतलब क्या हुआ? Your father, your mother, your grandfather. It means your ancestors. उसको हम बोलते हैं spindas. It means according to the Mitaksha school of thought, two people are said to be spindas of each other if they are the particles of the same body. Or else we can say that if they are related to each other by the same blood, they have the same bloodline. It means they have one or the other kind of blood relationship with each other. अब guys, अगर आपका किसी के साथ blood relationship होता है तो what do you think? Can you marry that person? No. I've already made you familiar. हमने जब introductory class करी थी that you cannot marry your brother, you cannot marry your sister, you cannot marry your father or your mother, nor you can marry your nephew or a niece. ये इस तरीके कुछ रिलेशनशिप्स हैं जहाँ के जिसमें हम शादी नहीं कर सकते, और अगर करोगे भी दैट मैरिज विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट. इट विल बी अ मैरिज नल एंड वॉइड विद इन द मीनिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. क्योंकि आप कौन हो? स्पिंडास हो टू ईच अदर. You people belong to each other by the same bloodline. You have some or the other blood relationship. It means you people are considered to be the particles of the same body. तो ये होती है आपका मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट की थिंकिंग, और इसी को माना जाता है कि आप स्पिंडास हो क्योंकि आप सेम ब्लड लाइन को बिलोंग करते हो. अब गाइज, सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 1 वो क्या बोलता है कि स्पिंडास होते कौन है. अब मैंने आपके लिए डायग्राम लेके आई हूँ, यहाँ पे आई विल बी मेकिंग यू फेमिलियर विद इट. बहुत ईजिली आपको डायग्राम के थ्रू समझ आ जाएगा. गाइज देखो, दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ बॉय, बी इज अ बॉय. यहाँ पे गर्ल भी हो सकते हैं बट आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉय. यहाँ पे बॉय है, बॉय इज मदर, देन बॉय की मदर, देन मदर्स मदर. कहने का मतलब है कि दिस इज अ बॉय, उसके मदर्स मदर इज विल बी हिज नानी, और उसके बाद उसकी परनानी.
सिमिलरली अगर मैं फादर की साइड से जाऊँ तो बॉय के फादर, हिज फादर्स फादर, इट मीन्स कहने का मतलब है कि उसके फादर, देन हिज ग्रैंडफादर, देन हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरीके से आपके एंसेस्टर्स की सीरीज चलती जाएगी ऊपर ऊपर ऊपर। आई होप गाइज आपको क्लियर हो चुका है। तो ये डायग्राम ये दिखाती है कि अ पर्सन इज सेट टू बी विद रेफरेंस टू अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, विद रेफरेंस टू अ बॉय। अब इसके स्पिंडर्स कौन होंगे, with reference to this person, ठीक है। Sapinda relationship with reference to a person extends as far as third generation inclusive in line of ascent through mother, and as far as fifth generation inclusive in line of ascent through father, and this line being traced upwards, ये ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी। हम ascent की बात करें, lineal ascendants की बात करें, this line will be traced upwards from the person who's concerned, for example this boy, and this person will be treated as the first generation। अब गाइस डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपको इसमें समझ कुछ नहीं आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन बोलती क्या है। डेफिनेशन बोलती है कि हर एक इंसान आपका स्पिंडा नहीं होगा, राइट। इट्स अ क्रॉस, आपको इस तरीके से समझना, इट्स अ क्रॉस। जहाँ पे क्रॉस बना, क्रॉस के नीचे जो है वो आपके सारे स्पिंडाज हैं, और क्रॉस के जो ऊपर लोग आएंगे वो आपके नॉन स्पिंडाज हैं। इट मीन्स जो उस क्रॉस के नीचे लोग हैं, जहाँ पे वो कट करेगा एक दूसरे को, उसके जो नीचे लोग हैं वो आपके स्पिंडाज हैं, और उसके जो ऊपर है वो आपके नॉन स्पिंडाज हैं। अब आप उनसे शादी कर सकते हो जो आपके स्पिंडाज नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो आपके स्पिंडा रिलेशनशिप में आते हैं आप उनसे शादी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेट मैरिड। नो गाइज, वो जो क्रॉस है उसकी लिमिट क्या है, वो लिमिट है थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम मदर्स साइड एंड फिफ्थ जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम फादर्स साइड। कहने का मतलब है कि जो ये बॉय है, इसकी जो मदर है, कहने का मतलब है कि दिस बॉय कैन नॉट मैरी हिज मदर, नॉ कैन ही मैरी हिज ग्रेट ग्रैंड मदर बेसिकली, राइट। ना तो वो अपनी मदर से शादी कर सकता है, ना अपनी नानी से कर सकता है, एंड बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यही आएगा, दिस पर्सन इज टू बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन उसकी मदर हुई फ्रॉम मदर्स साइड, एंड थर्ड जनरेशन विल बी हिज नानी, राइट। इट मीन्स यहाँ पे ये लाइन खत्म हो जाती है। आई ड्रॉन दिस डॉटेड लाइन क्योंकि ये जो थर्ड जनरेशन है ये इंक्लूसिव होती है, आप इसको एक्सक्लूड नहीं करोगे। थर्ड जनरेशन इज इंक्लूसिव फ्रॉम मदर्स साइड एंड फिफ्थ जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम फादर्स साइड, राइट। इट मीन्स यू कैन नॉट मैरी योर मदर, मदर की अगर कोई डॉटर होगी, इट मीन्स आपकी क्या हुई, वो सिस्टर हुई, यू कैन नॉट मैरी योर सिस्टर। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है, पहली बात तो ये स्पिंडाज होते हैं। स्पिंडाज मतलब ये सारे दे आर डीम्ड according to Mitaksha school of thought, these people are deemed to be related to each other by blood। क्योंकि आपका ब्लड रिलेशनशिप है, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। किन किन लोगों से नहीं कर सकते वो बताया गया है, डिग्रीज और डिग्रीज की तरीके से बताया गया कि आप कौन हो, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हो, बी इट अ बॉय और गर्ल, यू आर कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट जनरेशन, आप फर्स्ट हो। उसके बाद आपके ऊपर की जितनी भी पीढ़ियाँ जाएंगी वो लीनियल असेंडेंट्स होंगे। लीनियल मतलब अ स्ट्रेट लाइन, एंड असेंडेंट्स मतलब जो आपकी असेंडेंट्स है। डिसेंडेंट कौन होगा, इस अगर बॉय की जब व्हेन ही विल गेट मैरी, हिज सन विल बी कंसीडर्ड, हिज सन और डॉटर विल बी कंसीडर्ड हिज डिसेंडेंट, और वो उस बच्चे का, इसका फादर कौन होगा, असेंडेंट होगा। तो लीनियल मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, एंड असेंडेंट्स का मतलब होता है आपके जो पूर्वज है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं। तो आपको लीनियल असेंडेंट्स की तरीके से जाना है। दिस पर्सन विल बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट जनरेशन हिमसेल्फ, एंड दिस लाइन इज इट इज ट्रेस्ड अपवर्ड्स, ये ऊपर को जाएगी, उसको हम बोल देते हैं लीनियल असेंडेंट्स। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन के आपके एंसेस्टर्स जो हैं, जिसमें थर्ड जनरेशन इज इंक्लूडेड फ्रॉम मदर्स साइड एंड फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम फादर्स साइड। तो फादर की साइड से थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है और मदर की साइड से थर्ड जनरेशन तक लिया जाता है। इट मीन्स दिस इज अ पर्सन कंसर्न, ही हिमसेल्फ इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। Now this line will be traced linearly ascendant, it means बिल्कुल upwards आप straight जाओगे, ascendants अपने ancestors और पूर्वजों को देखोगे, जिसमें से मदर की साइड से आप थर्ड जनरेशन तक जाओगे, फादर की साइड से आप फिफ्थ जनरेशन तक जाओगे, और इसके विद इन जितने भी लोग आते हैं उनको आपके कजन्स ही माना जाता है, एंड यू कैन नॉट गेट मैरी विद इन द डिग्री, विद इन दीज डिग्रीज। यानी कि ये जो क्रॉस बनाया है ना, इसके नीचे नीचे ये सारे लोग आते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर वो आपके स्पिंडाज नहीं है, एंड देन यू कैन ईजिली गेट मैरिड। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है गाइस स्पिंडा रिलेशनशिप का, यानी कि दिस पर्सन कैन नॉट मैरी हिज फादर ऑब्वियसली, देन हिज फादर्स फादर, उसके ग्रैंड फादर, देन फादर्स फादर मीन्स ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये इस तरीके से चलेगी, जहाँ पे फिफ्थ जनरेशन पे हम आके रुक जाएंगे। इसके बाद जो है ना वो आपकी सिक्स्थ जनरेशन है, उनसे या उनके बच्चे जो हैं आगे, उनसे आप शादी कर सकते हो, वो आपके कजन्स नहीं होंगे,
ठीक है। 5th 6th जनरेशन से आप कर सकते हो फ्रॉम फादर्स साइड एंड 4th जनरेशन से आप कर सकते हो फ्रॉम मदर्स साइड। इट मीन्स गाइस कहने का मतलब क्या है कि चाहे ये फादर है, इन फादर का अगर कोई ब्रदर है, उनके भी आगे जो बच्चे हैं, या फादर का आगे कोई बच्चा है, कहने का मतलब क्या है कि नॉट ओनली फादर, यहाँ पे सिर्फ फादर और मदर पे बात नहीं रुकती, इनके आगे जितने रिलेशंस हैं वो उन सब से आप शादी नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर इस मदर का कोई बच्चा है, बी इट अ बॉय और अ गर्ल, दिस बॉय कैन नॉट मैरी दैट पर्सन, क्योंकि वो उसका कौन होगा, ब्रदर या सिस्टर होगा। अगर इस मदर की कोई सिस्टर या ब्रदर है, उनके आगे जो बच्चे हैं, इट मीन्स आपके मासी या आपके मामा के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं दे आर योर कजन्स, यू कैन नॉट मैरी। सिमिलरली यहाँ पे हम अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर भी लेते हैं, उनका भी लेते हैं, और उनके भी अगर कोई ब्रदर्स रहे हैं, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, उनके आगे जो जितने भी चिल्ड्रन हैं, एवरीबडी इज कंसीडर्ड विद इन दिस स्पिंडा रिलेशनशिप। यानी कि डिग्रीज कितनी है, ऐसे तो जाते को तो जितना मर्जी है वो ऊपर जाते रहो, इसीलिए डिग्रीज को बना दिया गया है 3rd जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम मदर्स साइड and 5th generation inclusive from father's side, but provided this person is to be treated as the 1st generation and this line is to be traced upwards। ये ascendants की लाइन है, पूर्वजों की है, आप डिसेंड नहीं करोगे, नीचे से नहीं, सिर्फ आपको ऊपर जाना है। सो इस तरीके से एटलीस्ट सेक्शन 3F क्लॉज सब क्लॉज 1, सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 1 हमें स्पिंडास के बारे में बताता है। तो गाइज यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि स्पिंडास मतलब दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड। अब आपको समझ आए कि जेन्युइनली दीज पीपल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, ठीक है। और कहने का, और गाइज यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, फॉर द पर्पसेज ऑफ सेक्शन 3 क्लॉज F, बी इट अ चाइल्ड बाय फुल ब्लड, बाय हाफ ब्लड और बाय यूट्रीन ब्लड। अगर वो आपका फुल ब्लड है, यानी कि मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशंस ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड। अगर आपको नहीं पता इन डेफिनेशंस का मीनिंग, प्लीज़ गो एंड वॉच माई अर्लियर वीडियो ऑन सेक्शन नंबर 3 जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सारे लोग इंक्लूडेड होंगे, चाहे वो फुल ब्लड है, चाहे वो हाफ ब्लड है, चाहे वो यूट्रीन ब्लड है, बी इट अ लेजिटिमेट और एन इलेजिटिमेट चाइल्ड और एन अडॉप्टेड चाइल्ड और अ नेचुरली बॉर्न चाइल्ड। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सपोज दिस इज अ मदर, मदर का जो बच्चा है वो अडॉप्टेड है, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो अडॉप्टेड सन है, अडॉप्टेड डॉटर है, तो वो हमारे स्पिंडर्स नहीं हैं। क्लियरली लिखा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 3 में, अगर आप रीड करो, क्लियरली लिखा है कि सेक्शन 3 क्लॉज F एंड G जो हम डिस्कस करेंगे देयर आफ्टर, कि दोनों जो है ना सेक्शंस दे आर एप्लीकेबल टू एनीबडी, बी इट योर रिलेशन बाय फुल ब्लड, बी इट योर रिलेशन बाय हाफ ब्लड और यूट्रीन ब्लड, बी इट लेजिटिमेट और एन इलेजिटिमेट चाइल्ड और एन अडॉप्टेड और नेचुरली बॉर्न चाइल्ड। तो हर एक इंसान पे ये एप्लीकेबल होगा। यू कैन नॉट से दैट दिस मदर वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ योर नानी, तो इसीलिए ये जो है वो डिग्रीज और जो स्पिंडा रिलेशनशिप में नहीं आते। क्लियरली लिखा है कि ये सारे ही स्पिंडास हैं, डजंट मैटर फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड, अडॉप्टेड, नेचुरली बॉर्न, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। आई होप गाइज आपको क्लियर हो चुका है। नाउ गाइज विल बी डिस्कसिंग सेक्शन 3 क्लॉज F एंड सब क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सो गाइज जो हमने सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 1 में देखी ना डिग्रीज ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप, उसको आपको फॉलो करना है इवन इन सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 2 में भी वो डिग्रीज फॉलो होंगी, विच इज 3rd जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम मदर्स साइड एंड 5th जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम फादर्स साइड। इज इट? अब गाइज अगर मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 3 क्लॉज F सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि इफ वन पर्सन, टू पर्सन आर सेड टू बी स्पिंडर्स। अब यहाँ पे आप देखना, 2 persons are said to be spindles of each other if one person, of Margaret here M, which is a mother, if one is the lineal ascendant of the other within the degrees of spindle relationship। अब आपको मैं ये समझा देती हूँ, दोनों definitions मैंने ली हैं with perspective to a boy and a girl, दोनों को समझाया है। Guys, here what happens is this is a boy, right? Boy has a father, right? His father has father's mother. Boy's father, then his father's mother will be termed as his dadi। उस बॉय की जो होगी वो ग्रैंड मदर होंगी, उसकी दादी होंगी। इट मीन्स ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर फ्रॉम फादर्स साइड, अगर आप लीनियरली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स चाहते हो, इट इज 5th जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम फादर्स साइड। इट मीन्स गाइज यहाँ पे द पर्सन कंसर्न विल बी ट्रीटेड एज द 1st जनरेशन। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द 3rd जनरेशन, इसके बाद अभी 4th एंड 5th जनरेशन भी आएगी। इज इट? सो कहने का मतलब है यहाँ पे कि इफ वन पर्सन इज द लीनियल असेंडेंट, वन पर्सन हियर रेफर्स टू योर दादी, your grandmother, if she, now obviously she is the lineal, means a straight line ascendant of yours within the degrees of prohibited, within the degrees of spindle relationship। Similarly guys यहाँ पे गर्ल की मैंने एग्जाम्पल ली है, गर्ल की जो मदर होंगी, मदर के जो फादर होंगे, इट मीन्स योर नानू, आपके जो नाना जी होंगे, यू कैन नॉट मैरी हिम ऑब्वियसली, क्योंकि अब यहाँ पे क्या गाइज, इसके बाद मैंने आपको ये डॉटेड लाइन लगा दी। इट मीन्स यहाँ पे मदर की साइड से जो डिग्रीज है वो खत्म हो जाती हैं।
द पर्सन कंसर्न विल बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट जनरेशन एज आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे गर्ल शी विल बी द फर्स्ट जनरेशन, मदर की जनरेशन सेकेंड जनरेशन होगी और उसके बाद की जनरेशन थर्ड होगी. थर्ड जनरेशन इज इंक्लूसिव, बट उसके बाद की जनरेशन हम इंक्लूड नहीं करते अगर हम मदर की मैटर्निटी मदर की साइड से देखते हैं. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इफ मैंने आपको बॉय एंड गर्ल के एग्जांपल से बताया सो दैट इट यू नो आपको क्लियर हो जाए कि टू पर्सन्स आर सेड टू बी स्पिंडल्स ऑफ ईच अदर इफ वन पर्सन इज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप. डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप तो क्वाइट क्लियर है कि मदर की साइड से तो 3 डिग्री, थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव, उसके बाद आप इंक्लूड नहीं करोगे. इट मीन्स मदर की साइड से जो फोर्थ जनरेशन होगी वो आपके स्पिंडल्स नहीं है एंड यू कैन मैरी देम विद इन द मीनिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. सिमिलरली फादर की साइड से 5th जनरेशन को आप इंक्लूड करोगे और उसके बाद की जितनी भी जनरेशन होंगी 6th, 7th एंड सो ऑन, जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी वो आपके स्पिंडल्स नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड यू कैन मैरी देम. इट मीन्स वो जो क्रॉस लग जाता है ना वो कहाँ पे लगता है, थर्ड जनरेशन फ्रॉम मदर्स साइड, 5th फ्रॉम फादर्स साइड, और उसके बाद के ऊपर के जितने भी आपके एंसेस्टर्स हैं उनसे या उनके बच्चों से, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनसे आप शादी कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट योर स्पिंडल्स. अगर वो आपके स्पिंडल्स नहीं है इट मीन्स आपकी उनके साथ सेम ब्लड लाइन नहीं है तो यू कैन ईजिली मैरी देम विद इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप क्लियर है, बट जो आपको सेक्शन 3 क्लॉज है सब क्लॉज 2 में देखेगा कि इफ वन इज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, उसका मतलब क्या है कि दिस पर्सन इज ऑब्वियसली द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर. लीनियल मीन्स द स्टेट लाइन एंड असेंडेंट मीन्स आपके जो पूर्वज हैं. आपको ऊपर को जाना है, आपको अपवर्ड्स जाना है एंड अपवर्ड्स जाते हुए अगर कोई भी इंसान विद इन द डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप आपका लीनियल असेंडेंट है, आप उससे शादी नहीं कर सकते. सो एज टू मेक इट ईजी फॉर यू मैंने गर्ल के साथ फादर की एग्जाम्पल ले ली, बॉय के साथ मदर की एग्जाम्पल ली ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए दैट यू कैन नॉट मैरी योर नानू, नो यू कैन एज अ बॉय, नो कैन यू मैरी योर ग्रैंड मदर. आई होप आपको समझ आ चुका है कि दीज 2 पीपल, फादर्स मदर या फिर आपके मदर्स फादर, दे आर योर लीनियल स्टेट लाइन असेंडेंट्स within the degrees of spindle relationship, so you can't marry them. Right? इसके बाद की जो पीढ़ी आएगी क्योंकि मदर की साइड से जा रहे हैं तो उनसे आप शादी कर सकते हो बिकॉज दे आर नॉट योर स्पिंडल्स, वो आपके स्पिंडल्स नहीं हैं. लेकिन फादर की साइड से अभी भी आपको 4th और 5th जनरेशन को निकालना होगा. ये सिर्फ हमने 3rd जनरेशन तक मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है एंड आफ्टर दैट वो आपके स्पिंडल्स नहीं होंगे अगर हम फादर की साइड से देखें, लीनियल असेंडेंसी फादर की साइड से देखें. आई होप आपको सेक्शन 3 क्लॉज एफ सब क्लॉज 2 का पार्ट 1 समझ आ चुका है. पार्ट 1 इन द सेंस कि मैंने उसको डिवाइड कर दिया. सेकंड डेफिनेशन ये आती है कि यू अब एक और इंसान आपका स्पिंडल होगा इफ़ यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर. 2 persons are also said to be spindles of each other if they have a common lineal ascendant. गाइस कॉमन लीनियल असेंडेंट का मतलब है कि अगर आपका कॉमन एंसेस्टर है, शॉर्ट में कॉमन एंसेस्टर. लीनियल असेंडेंट का मतलब है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते रहोगे अपने एंसेस्टर्स की तरफ, पूर्वजों की तरफ जाते रहोगे, अगर कहीं पे भी आपका कॉमन लीनियल असेंडेंट आपको दिख गया बट विद इन द डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप, तो फिर आप उससे शादी नहीं कर सकते. इसको भी मैं डायग्राम लेके आई हूँ, आई विल बी मेकिंग यू फेमिलियर विद इट. बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट सेक्शन 3 क्लॉज एफ सब क्लॉज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, अदरवाइज तो आप किसी से शादी ही नहीं कर पाओगे. तो ये डिग्रीज होती हैं, सिर्फ इन डिग्रीज के विद इन आपके स्पिंडल्स होंगे, उसके बाद आपके स्पिंडल्स नहीं होते. फिर चाहे आप लीनियल असेंडेंसी की बात करो, चाहे आप कॉमन एंसेस्टर्स की बात करो. अब यहाँ पे गाइस क्या होगा, देखो दिस इज अ बॉय. अगेन बॉय इज अ पर्सन कंसर्न, ही विल बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट जनरेशन. इसके जो फादर होंगे, फादर्स फादर फादर्स फादर्स फादर, तो ये आपकी असेंडेंसी चल रही है, पूर्वजों की तरफ हम अपवर्ड्स चलते जा रहे हैं. उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वी हैव फादर्स 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 सन, उनका बच्चा हुआ, राइट. उनका जो बेटा है उनका आगे बेटा हुआ, सन्स सन. अब उस सन की आगे डॉटर हुई, सन्स डॉटर. ना गाइस दिस बॉय एंड दिस गर्ल, यहाँ पे अगेन मैंने डॉटर की एग्जांपल ली सो एज टू मेक यू फेमिलियर सिंस वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. हम हिंदू मैरिज आप डिस्कस कर रहे हैं तो मैरिज इज ऑब्वियसली बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. तो यहाँ पे इसीलिए आई एम टेकन दोज एग्जाम्पल्स ताकि आपको क्लियर हो जाए बात. अब यहाँ पे अपने पास क्या है, बॉय कांट मैरी दिस गर्ल. वाई कांट ही मैरी दिस गर्ल? बिकॉज they have a common ancestor and that too common lineal ascendant है, कॉमन है, लीनियल है स्टेट लाइन में और असेंडेंट है, पूर्वज है. यानी कि इन शॉर्ट दे हैव कॉमन एंसेस्टर. एंड हाउ कम दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर? दिस इज देयर कॉमन एंसेस्टर एंड ही शुड बी विद इन द डिग्रीज ऑफ स्पिंडल रिलेशनशिप. अगर वो उसके बाहर है तो फिर ऑब्वियसली दे आर नो स्पिंडल्स टू ईच अदर एंड देन दे कैन मैरी. सिंस अब यहाँ पे आप देखो मैंने फादर की एग्जाम्पल ली, हर जगह मैंने फादर की एग्जाम्पल ली,
तो फादर की साइड से कितना होगा 5 जनरेशन इंक्लूसिव, 5th जनरेशन इज इंक्लूडेड, 6th जनरेशन में अगर कोई आता है आप उनसे शादी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, बोथ ऑफ देम आर कंसीडर्ड सिंस दे आर पर्सन्स कंसर्न, ये कौन हुआ फर्स्ट जनरेशन हुए। अगर हम अब अपवर्ड्स जाते हैं, लीनियल असेंडेंस की तरफ जाते हैं, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। अब ये भी अभी जो आपके कॉमन इंसेस्टर हैं, कॉमन लीनियल असेंडेंट है, वो 4th जनरेशन में है, लेकिन फादर की साइड से वो 5th जनरेशन इंक्लूसिव होती है। तो इट मीन्स इसके बाद की भी एक पीढ़ी आपको छोड़नी होगी और उसके बाद जो आएंगे उनसे आप शादी कर सकते हो, बिकॉज यू आर नो स्पिंडास टू देम। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रही है ये बात। सिमिलरली अगर यहाँ पे गर्ल को रख के, अगर मैं यहाँ पे उसको मदर को रखती फादर की जगह, तो हमें यहाँ पे 3rd जनरेशन तक रुक जाना था। 3rd जनरेशन के बाद जो 4th जनरेशन थी, अगर उसमें कोई कॉमन असेंडेंट होता, राइट, यानी कि कॉमन इंसेस्टर होता, लेकिन अगर हम मदर की साइड से देखते तो वहाँ पे यू कैन मैरी, बट सिंस वी आर डीलिंग विथ फादर हियर, तो आपको अभी भी एक पीढ़ी और छोड़नी होगी। मदर की साइड से अगर ये मदर होती यहाँ पे, तो ये जो 4th जनरेशन थी फिर वो इस इलस्ट्रेशन में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि फिर 4th जनरेशन मदर की साइड से इंक्लूड नहीं होती है, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, देन यू आर नो स्पिंडर्स एंड यू कैन ईजिली गेट मैरिड। आई होप गाइस आपको सेक्शन 3 क्लॉज एफ क्लियरली समझ आ चुका है कि स्पिंडर रिलेशनशिप होता क्या है। इन द नटशल अगर मैं बताऊं तो स्पिंडर्स वो लोग होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बाय द सेम ब्लड लाइन, सिंस दे आर कंसीडर्ड टू बी द पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी। उसमें अब अगर आपको देखनी है डिग्रीज, सबसे पहले यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड डिग्रीज ऑफ स्पिंडर रिलेशनशिप, विच इज 3rd जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम मदर्स साइड एंड 5th जनरेशन इंक्लूसिव फ्रॉम फादर्स साइड। फर्स्ट जनरेशन वो होगी जो पर्सन कंसर्न है, उसको आप फर्स्ट जनरेशन मानोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज टू बी ट्रेस्ड अपवर्ड्स। अपवर्ड्स मतलब आपको लीनियल असेंडेंसी दिखानी है, लीनियल स्ट्रेट लाइन में आपको ऊपर एंसेस्टर्स के पास जाना है, आपको डिसेंड नहीं करना, नीचे नहीं आना, ऊपर जाना है। और उसके बाद डिग्रीज आपको देखनी है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्शन 3 क्लॉज एफ सब क्लॉज 2 ये बताता है कि वो लोग भी स्पिंडर्स हैं जब वन पर्सन इज द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर विद इन द डिग्रीज ऑफ स्पिंडर रिलेशनशिप, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड ऑल्सो दोज पीपल आर स्पिंडर्स टू ईच अदर इफ दे हैव कॉमन लीनियल असेंडेंट। कॉमन इंसेस्टर होगा तो वो भी स्पिंडर्स होते हैं, प्रोवाइडेड वो जो कॉमन इंसेस्टर है अगेन वो डिग्रीज ऑफ स्पिंडर रिलेशनशिप में आना चाहिए। अगर वो उसके बाहर है तो ऑब्वियसली यू आर नो स्पिंडर्स एंड यू पीपल कैन गेट मैरिड। वो वेरी करता है क्योंकि यहाँ पे फादर की इलस्ट्रेशन ली तो 4th जनरेशन इंक्लूड होगी, इवन 5th जनरेशन भी होगी इंक्लूड। यहाँ पे अगर यही मदर होती तो यहाँ पे हमें यहीं पे रुक जाना था। और अगर इस क्योंकि विद इन 3 डिग्रीज के विद इन हमारा कोई कॉमन इंसेस्टर नहीं था, देन दीज 2 पीपल कुड हैव गेट मैरिड, राइट, क्योंकि मदर की साइड से 3 जनरेशन थी और कॉमन इंसेस्टर आपका 4th जनरेशन में था, तो फिर आप शादी कर सकते थे क्योंकि वो एक्सक्लूड हो गया एंड देन यू आर नो स्पिंडर्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी भी हमें एक और एंसेस्ट्रल स्टेयर ऊपर चढ़नी है अगर हम फादर की बात करें, इसीलिए मैंने इलस्ट्रेशन ये ली सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई होप गाइस स्पिंडर रिलेशनशिप क्लियर हो चुका होगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, डायग्राम्स के थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्टिल गाइस इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इट, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.